purchase tackle problems, which is again like most likely question out of stowage and purchase tackles. So we will go with the just from the beginning, what is basically a block, what is tackle or what is purchase, and how we can use this machine to lift the weights. Basically you must have used on the ship, few of you, but you may not have realized जब आप ब्लॉक्स को, वुडन ब्लॉक्स या स्टील ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे थे, क्या इसका सिस्टम क्या होता है. So today we will go through that, so that makes you a little clear understanding what is this system of blocks. How can we gain advantage by applying less force to pick up a weight. Okay, let me share the screen. Good afternoon, sir. Haji, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. Good morning. चलो कितने रह गए? I think all of you are there or still? Yeah. Okay. Another. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, dear. Good morning, sir. Good morning, everyone. Yeah. चलो. So all of you are there. So let's start with these purchase problems, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और हमें ठीक भी करना है. 25 मार्क्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये परचेज या टैकल्स होते क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दीज ब्लॉक्स. एनीबडी हु हैज नॉट सीन दीज ब्लॉक्स, दीज टाइप ऑफ ब्लॉक्स ऑन द शिप? सबने देखे होंगे. Yes, sir. Isn't it? चलो आजकल थोड़े कम यूज होते हैं. So जनरल कार्गो शिप्स, these were the very frequent things. कहीं से भी कुछ भी उठाना है. वेरी टिपिकल वाज द गैंगवे, कि आप उसको उठा तो Yes, लेते हो. sir. Emergency होता है तो सर यही यूज करते हैं. हाँ जी, गैंगवे अंदर नहीं आ रहा है. गैंगवे को स्विंग इन करना जो है, कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर नहीं है, एंड दैट टाइम स्विंगिंग इन द गैंगवे. सो वी नॉर्मली यूज दिस ब्लॉक्स किया. 2 सेट ऑफ ब्लॉक्स लिए, एक को हैच कवर के वहाँ भी आप फोमिंग पे बांध दिया, एक को गैंगवे पे, एंड देन heave up and the gangway comes in. So these are the basic seamanship jobs. So this is what basically we call the blocks and tackles, how they look like. So इस blocks के थोड़े थोड़े parts अगर आप देखिए, so terminology, this is normally the eye of the block, and इसके नीचे में एक और eye होती है जिसे हम bicket कहते हैं. So this is known as the bicket, and इस wooden block ये आपकी body है, इसके अंदर आपके sheaves हैं. Now this is like there are 2 sheaves, so we call ट्विन शीप ब्लॉक, सिंगल शीप ब्लॉक, और 3 शीव्स, 4 शीव्स, कितने भी हो सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द शीव्स, स्टील की जो आपकी पुलिस हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज. एंड ये जो है दे आर सपोर्टेड बाय द पिन हेयर. सो ये पिन के ऊपर उसने प्लेट लगा दी है, अदरवाइज अ पिन पासिस थ्रू, जो पुलिस को और द शीव्स को रोटेट करने देती है फ्रीली. सो दीज आर swallow को? Yeah, this is basically just a given a space here just for the pulleys not to get stuck here. So swallow छोड़ दीजिए इसको. This is a very tricky term. So ये ऊपर वाला part normally we call it crown, और इसे हम tail, eye, pin, bicket. So ये होना चाहिए. जब हम इसको use करेंगे we can tie up a shackle here, or sometime you have a hook here, जैसा आपने इसमें देखा है. You can have a hook also. So इसको लगाने के लिए, and one part of the rope we can fix with this bicket also. अब ये आ जाता है कि यस, ये जो ब्लॉक्स हैं इसके बिफोर वी गो इनटू दिस, हमें थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए. व्हाट इज सेफ वर्किंग लोड, व्हाट इज ब्रेकिंग लोड और ब्रेकिंग स्ट्रेस, व्हाट इज प्रूफ लोड, which you most of you must be aware, but just to refresh you, what is basically safe working load? Safe working load is the stress that a component of a lifting apparatus can bear in normal use. अब आपने वायर्स यूज़ की होंगी एनीवेयर, चाहे गैंगवे है, चाहे मूरिंग्स हैं, चाहे क्रेन्स हैं.
So wherever you put these wires and all that, so we want to lift the amount of weight with that wire or rope so that nothing goes wrong with the wire, isn't it? Now we know that when we get these wires or ropes, पूरे coils आपने receive किए होंगे, new wires, they come with a certificate, उसके ऊपर उसने उसका breaking stress लिखा होता है. So breaking stress is कि उस लोड पे आप इतना लोड लगाओगे तब ये वायर टूट जाएगी. So normally we don't want to use, because हमने अगर किसी चीज़ की वायर गैंगवे एग्जांपल या कोई क्रेन की वायर लगाई है, we want to use it for many years. So we don't want that wire should get damage or even उसकी strength में कहीं भी फर्क आए. So वो जो लोड हम लगाएंगे that is called the safe working load. So normally safe working load जो है breaking stress से एक safety factor होता है 5 और 6, which authorities जो है या certificate पे आपने लिखा होगा the safety factor is 5 for this size of rope. So जो breaking stress है, suppose 20 ton is the breaking stress कि 20 ton पे ये wire टूट जाएगी, safety factor is 5, that means I should apply only 4 ton of load on that wire. So this is called the safe working load. Breaking stress at which ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसको लिफ्ट कर रहे हैं, जिस चीज को या जिसको यूज कर रहे हैं उसकी होगी, ये लिफ्टिंग एपरेटस की नहीं होगी. नो ब्रेकिंग स्ट्रेस आप एग्जांपल आप किसी चीज़ को भी लिफ्ट कर रहे हो, अगर आप इसी पिक्चर में देखिए व्हाट यू आर लिफ्टिंग. नाउ यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट एनीथिंग विद दिस ब्लॉक और विद द क्रेन. जस्ट इमेजिन सिंपल क्रेन से आप कुछ चीज़ को लिफ्ट करते हो, तो क्रेन में क्या लिफ्ट कर रहे हो? वायर से लिफ्ट कर रहे हो. सो वायर का जो सेफ वर्किंग लोड है कि आपने ड्रम उठाने हैं, कार्गो उठाना है, कंटेनर उठाना है, सो उस कंटेनर का जो वेट है, उस ड्रम्स का जो वेट है, दैट शुड नॉट बी मोर देन द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द वायर. एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आपने वायर लगाई है अपने क्रेन में जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है 20 टन है, एंड मेरे पास सेफ्टी फैक्टर आ गया 5, सो आई कैन लिफ्ट ओनली 4 टन. सो दैट मीन्स I should not lift any weight which is weighing more than 4 ton with this wire, with this crane. Okay, that is called safe working load. So in normal condition में जो हम उसको यूज करते हैं, उससे आपकी वायर पे किसी पे भी कोई भी उसकी स्ट्रेंथ में फर्क नहीं पड़ता. ब्रेकिंग स्ट्रेस इज यस, आप उतना स्ट्रेस दिखाइए. क्या होता है हाँ जी, सेफ फैक्टर सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? या सेफ्टी फैक्टर होता है. सेफ्टी फैक्टर इज डिटरमिन्ड अगेन ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड ऑल दैट, कि आपने वायर यूज कहाँ करनी है, किस टाइप की वायर, उसका मटेरियल. सो इट इज नॉर्मली गिवन इन द सर्टिफिकेट की सेफ्टी फैक्टर फॉर दिस वायर इज सो मच. नॉर्मली दिस अथॉरिटीज जो हैं वो फिक्स करती हैं कि इस साइज की वायर, इस मटेरियल की वायर, इसका सेफ्टी फैक्टर आपको दिया जाता है जस्ट टू अराइव एट द सेफ वर्किंग लोड. ओके सर सेफ वर्किंग लोड अगर कोई क्रेन से कुछ उठा रहा है सर, तो सेफ वर्किंग लोड क्रेन का वायर का होगा ना सर? या हर चीज़ का होगा वहाँ पे. सेफ वर्किंग लोड हर चीज़ का होगा. सो हमने देखना है जो क्रेन का भी सेफ वर्किंग लोड है, क्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका भी सेफ वर्किंग लोड है. सो नॉर्मली जो वायर है बेसिकली आपका जो सारा स्ट्रक्चर है दैट इज टेस्टेड फॉर से 20 टन. तो सर मतलब इन द सेंस सर क्रेन का ऑल पार्ट्स का सेफ वर्किंग लोड होगा? यस, ऑल पार्ट्स का सेफ वर्किंग लोड जो है कि आप इस क्रेन से 20 टन लोड उठा सकते हो. जिस पार्ट पे भी जितना भी लोड आएगा दैट विल बी विद इन द लिमिट. यस, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि यार जो हमने वायर यूज़ करनी है, बाकी तो स्ट्रक्चर सारा टेस्टेड है कि यार फुल स्ट्रक्चर जो उसकी जिप, जो उसका स्टील फ्रेम है, जो भी है, मोटर्स हैं, वो सारा 20 टन कर सकता है. तो नॉर्मली हम चेंज क्या करते हैं कार्गो गियर में, चेंज क्या करते हैं बेसिकली वायर्स. वायर ही कभी डैमेज होगी, कुछ होगी, उसी को हमने चेंज करना है, चाहे गैंगवे हो चाहे क्रेन हो. सो दैट मीन्स अब जो मैंने वायर डालनी है तो उसका सेफ वर्किंग लोड भी उतना ही होना चाहिए जितने क्रेन आपकी टेस्टेड है. तो दैट वी विल सी, उसके फॉर्मूला भी दिया हुआ है. वैसे तो एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो आपके सर्टिफिकेट पे होता है बाय डिस्ट्रक्शन. लेबोरेटरी में जहाँ, फैक्ट्री में जहाँ वायर्स बनती हैं वहाँ पे उनको एक लिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है जिसपे वायर को पुल किया जाता है विद द मीटर, एंड जिस स्ट्रेस पे वायर टूटती है वो रीडिंग नोट कर लेते हैं और सर्टिफिकेट में इतना, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. सो वो एक्चुअल है, बट अदरवाइज देयर इज अगेन अ फॉर्मूला आल्सो वी विल सी विच इज आल्सो रफली मैचिंग कि आप उसके डायमीटर से उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं. ओके, वी विल सी दैट. प्रूफ लोड is again safe working load plus certain percentage of tonnage to which the lifting equipment is tested. For example, proof load of 60 tons safe working load crane may be 66 tons.
कि क्रेन जो है 66 टन पे टेस्ट होगी, बट अलाउड टू वर्क सेफ वर्किंग लोड उसका 60 टन। तो प्रूफ लोड है कि उसको जब टेस्ट करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट करेंगे, दैट इज प्रूफ लोड। अब आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ फैक्टर यूज्ड टू डिवाइड द ब्रेकिंग स्ट्रेस टू ऑब्टेन सेफ वर्किंग लोड। सर एक बार पीछे सर, बैक सर सेफ वर्किंग लोड एक बैक वो सर पीछे एक बार दीजिए सर। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और प्रूफ लोड सर, ये जो है प्रूफ लोड जो 66 टन है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा तभी तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस तो है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर विल टूट जाएगा वहाँ, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग। इतना फोर्स लगाओगे दैट थिंग, दिस एग्जांपल जैसे आप वायर को ले लीजिए कि अगर मैं उस पे 20 टन का लोड लगाता हूँ तो 20 टन जैसे ही आप लगाओगे तो वायर विल ब्रेक। यस सर। तो प्रूफ लोड क्या है कि अब मेरी क्रेन है, जैसे आपकी क्रेन एग्जांपल आपकी 20 टन की क्रेन है, आपने उसको 20 टन उठाने के लिए यूज़ करना है। तो जब हम उसकी टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो हम उसको 20 पे नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज हो सकता है कई बार थोड़ा सा झटका आया, कुछ भी आया तो उसका लोड इंक्रीज हो सकता है। उसके लिए प्रूफ लोड जो है जिसे कहते हैं, जहाँ पे आपको उसको क्रेन को टेस्ट करना है, दैट्स कॉल्ड प्रूफ लोड, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। So it can be, it is that we will also see, say up to 20 ton it is 25% extra, that means 20 टन की अगर क्रेन है, 20 टन की क्रेन अगर हम कहते हैं कि 20 टन की क्रेन है, दैट मीन्स इसका सेफ वर्किंग लोड 20 टन है, यू कैन ओनली लिफ्ट अप टू 20 टन। तो उसका प्रूफ लोड 25 टन, दैट मीन्स इसका इस क्रेन को 25 टन तक टेस्ट किया हुआ है। टेस्टिंग के टाइम में 25 टन का लोड लगाया था, बट वर्किंग के लिए आपने 20 से एक्सीड नहीं करना। ओके, थैंक यू सर। या so same way factor of safety is a factor used to divide the braking stress to obtain safe working load, and braking stress can be obtained from the following formulae, where D is the diameter in millimeter and result is in tons. So आपकी ropes हैं, vanilla rope, polypropylene, terraline, nylon, इन सब के जो हैं ये formula, these are empirical formulas but they give results very close to या इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस आएगा। नाउ दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो मनीला रोप का मेरे को अगर डाया पता है, आई कैन कैलकुलेट द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मनीला रोप 2d² upon 300, polypropylene rope 3d² upon 300, terraline and same way nylon. Similarly for wires, 6/12 की वायर, 6/24 की वायर एंड 6/37 की वायर, उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए 15d², 20d², 21d²। और ये जो वायर्स है 6/12, 6/24, 6/37, when we go through, when we study about the wires, diameter का स्क्वायर है ना? Yeah, diameter square, yeah, this is square, 15d², 20d², 21d²। सर एक और सर, जब कोई वेसल मूडिंग में रहता है तो वो उसमें जो रोप रहता है सर, उसमें वेट देके प्रूफ किया जाता है सर कि फोर्स देके प्रूफ किया जाता है सर? मूडिंग रोप को क्या चीज देख के सर अलोंग साइड में रहता है कोई वेसल, तो उसको मूडिंग किया हुआ रहता है रोप, उस रोप को सर वेट देके चेक किया जाता है या फोर्स देके चेक किया जाता है सर? या अगेन बच्चे सेम थिंग, वेट और फोर्स। अगर आप देखिए कि आपकी जो मूविंग रोप है, एग्जांपल आपकी 60 mm की रोप है, इजंट इट? सो 60 mm की अगर आप पॉलीप्रोपिलीन की रोप यूज कर रहे हो जिसका डाया जो है 60 mm है, तो मैं यहाँ से उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ, इजंट इट? Yes. अगर आप इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए 3 × 60 × 60 डिवाइड बाय 300, तो देखिए जरा कैलकुलेटर पे कितना आता है। थ्री इंटू 60 सर, कितना आ गया? या 3 × पॉलीप्रोपिलीन किया 3 × 60 × 60 डिवाइड बाय 300, 36 tons, isn't it? Yes sir, 36 ton. So that means 36 ton is the breaking stress or the breaking load. अब उसका हमने जब उसको यूज करना है तो उसका सेफ्टी फैक्टर दिया होगा। सपोज उसका सेफ्टी फैक्टर जो है आपके पास दिया उसने 5 या 6, तो 6 अगर सेफ्टी फैक्टर है, दैट मीन्स आई कैन अप्लाई ओनली अ लोड और फोर्स ऑफ 6 टन्स। तो जब आपने उसको पुल कर रहे हो तो आपकी जो विंचीज हैं, सो विंचीज आर ऑल्सो डिजाइन कि ये जो विंच है, ये जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, जब आपने फुल कर भी दिया इसको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 टन ही लोड उठाएगी। 5 टन के बाद ये विंच उससे ज़्यादा लोड नहीं उठाएगी, विंच रुक जाएगी या ट्रिप हो जाएगी। ओके, सो दैट मीन्स आपकी जो रोप है दैट कैन
डेफिनेटली वर्क एट 6 टन। 6 टन पे उस रोप को कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने 6 टन से ज़्यादा लोड लगाया एंड अगर आप 36 टन तक पहुंचते हो तब तो टूट जाएगी। तो इसके लिए ये सारा जो रोप्स का साइजेस है, मूविंग रोप्स का साइज, एक क्लासिफिकेशन सोसाइटी, वो सारा इसका बड़ी कैलकुलेशन होती है। व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, वो सारी देख के, दैट्स अ बिग टॉपिक। बट नॉर्मली इट इज़ डिसाइडेड एज पर द साइज ऑफ द शिप, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, कितने साइज की रोप्स चाहिए। तो उनका भी डाया एंड सेफ वर्किंग लोड ही ऐसे फिक्स किया जाता है कि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है तो उसका जो सेफ वर्किंग लोड है, ताकि नॉर्मल यूज में। तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा, रोप्स नॉर्मली विल नॉट पार्ट अनटिल उसकी कंडीशन खराब है, पुरानी हो गई, सड़ गई, फिर तो टूटेगी। बट नॉर्मली अगर आप रोप यूज करोगे तो विंच जो है वो पहले ट्रिप होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रोप ब्रेकिंग। अगर मैं रोप को हीव अप करता हूँ, ठीक है, फुल हीव अप कीजिए, तो आपकी विंच और सारा कुछ है सेटिंग की होती है कि ये जो रोप है मैक्सिमम इसके ऊपर 6 टन का वेट आना चाहिए। तो विंच भी 6 टन पे ही है। तो 6 टन से ज़्यादा वेट आना शुरू किया तो विंच उठाएगी नहीं, विंच विल ट्रिप। तो आपकी रोप शुड नॉट पार्ट। बट रोप्स क्यों पार्ट करती हैं? बिकॉज रोप्स जो है पुरानी हो गई, आपने देखी नहीं, टूट गई थी, या एक आधा स्ट्रैंड टूटा हुआ है, फिर तो 4 टन पे ही टूट जाएगी। चलो, ये तो था आपका। नाउ इफ यू सी, नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉक्स एंड टैकल्स? नाउ ब्लॉक्स एंड टैकल इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपने फोरपिक स्टोर में अपना सामान निकाला होगा फोक्सल डेक पे जाके, देखा फोरपिक स्टोर में एक मूवी हैच होता है फोक्सल पे, जहाँ से हम स्टोर निकालते हैं लाइक दिस। तो अगर मेरे को ये बेल को उठाना है या किसी स्टील कॉयल को उठाना है या वायर कॉयल या रोप कॉयल को उठाना है, अगर मैं बेंड होके इसको उठाता हूँ तो मेरे को काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पे एक छोटा सा डेविड दिया होता है, वहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ, सिंगल शीप ब्लॉक लगाता हूँ, एंड मैं उसको ऐसे पुल करना शुरू कर देता हूँ। नाउ इसमें क्या एडवांटेज आ रही है आपको? अब मेरे को काफ़ी कम एफर्ट लगाना पड़ता है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकता हूँ। क्यों? एक तो आई एम पुलिंग विद द ग्रेविटी। अगर मैं बेंड होके इसको उठाता हूँ देन आई एम पुलिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी, इसके लिए आपको जोर ज़्यादा लगता है। अगर मैं ये डबल की बजाय एक सिंगल शीप यहाँ लगा देता हूँ, एक सिंगल पुली लगा देता हूँ और इसको करता हूँ, तो मेरे को एडवांटेज नहीं मिल रही, बट आई एम पुलिंग विद द ग्रेविटी। ग्रेविटी मेरे को असिस्ट कर रही है, इसके लिए मेरे को लगता है यार मैं बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। सो ब्लॉक्स एंड टैकल्स बेसिकली दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। अगर आप देखिए, what is block and tackle? A purchase, what we call tackles या purchase, is a machine whereby a load or resistance can be overcome by means of an effort or applied force. कि by applying less force I can pick up more weight. So this is the advantage, that's why we call it a machine. So we purchase a tackle machine कहाँ से? It's just a combination of blocks. अब इसी में देखिए हमने किया क्या, हमने एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया, एक ब्लॉक ये लगा दिया, it becomes a machine. अब इसको आपको अगर ये इसका वेट 1 टन है तो हो सकता है आपको सिर्फ क्वार्टर ऑफ अ टन या हाफ अ टन एफर्ट ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक एडवांटेज मिल रही है बाय सेट ऑफ दीज ब्लॉक्स। तो इसलिए इसे एक मशीन कहा जाता है कि अ सेट ऑफ ब्लॉक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स विद द रोप वी कॉल इट अ टैकल और अ परचेज। तो अब इनको जो है, आई विल कम टू दिस एडवांटेज डिसएडवांटेज लेटर ऑन कि यस व्हेन दे आर रोप टू। तो थोड़ा सा और इसको देखते हैं। Now tackles and usage, now when it is used with line and another block it becomes a tackle. So जो हमने blocks देखे हैं उन्हीं blocks को अगर मैं rope के साथ join करके 2 या 3 blocks को join कर देता हूँ, so it increase the power applied on the hauling part. So tackles are designated according to their use and number of sheaves. हाँ जी, go ahead. तो ये जो टैकल्स एंड परचेजेस हैं उनका जो नाम है, उनकी जो डेजिग्नेशन है, दैट इज डन अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड नंबर ऑफ शीव्स इन द ब्लॉक दैट आर यूज्ड टू मेक द टैकल। तो उसकी भी आपको लिस्ट दिखाएंगे। द टैकल्स आर नेम्ड फॉर देयर यूज और फ्रॉम देयर मेकअप। द मोस्ट कॉमनली यूज टैकल्स ऑन द शिप आर बेसिकली, इफ यू सी, इफ वी यूज दिस 2 ब्लॉक्स, ये भी सिंगल शिप ब्लॉक है, ये भी सिंगल शिप ब्लॉक है, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो हम इसे गन टैकल कह देते हैं। और अगर आप सिंपल देखिए, दीज आर योर वेरियस टैकल्स। ये मेरा सिंगल शीव है, इसे हम कहते हैं सिंगल विप। ये एक हुक थी, उसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक टांग दिया एंड ये रोप इससे पास किया एंड आई स्टार्ट हीविंग। आई कैन लिफ्ट द वेट इजीली बिकॉज आई एम पुलिंग विद द ग्रेविटी। एडवांटेज मेरे को कुछ नहीं मिली, सिर्फ ग्रेविटी मेरे को हेल्प कर रही है। सिमिलरली अब इफ आई पुट 2 ब्लॉक्स, 1 सिंगल शीप ब्लॉक एंड 1 सिंगल शीप ब्लॉक, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं गन टैकल।
सिमिलरली जैसे जैसे शीव्स इंक्रीज होते जाएंगे, पुलीज इन ब्लॉक्स में इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, दिस इज कॉल्ड अगेन वन ट्विन शीव ब्लॉक, इसमें 2 शीव्स हैं एंड 1 सिंगल शीव ब्लॉक। इनको जब मैं कंबाइन करता हूँ और यूज करता हूँ विद दिस रोप सिस्टम, इसे हम कहते हैं लफ टैकल या वॉच टैकल। तो ये आपकी अल फर्नांडिस आपकी बुक में भी है, आपने प्री-सी में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। So this is basically luff or watch tackle. And similarly, now if I make it to 1 twin sheave block and 1 twin sheave block, ये वाला ब्लॉक है, इसमें भी 2 शीव हैं, ये ब्लॉक इसमें भी 2 ब्लॉक शीव्स हैं, then it is called two fold. Similarly, इसके बाद आपका आ जाता है what we call the gin block और डबल लफ, की एक में 3 शीव आगे, एक में 2 शीव आगे। सिमिलरली 3 और 3, this is called 3 fold, 4 fold, 5 fold, ऐसे चलता जाएगा। So this is again basically the terminology that we will be using in these numericals, that a gun tackle is used or luff tackle is used or gin tackle is used. So basically अगर आप देखिए, single whip consists of single sheave, single fixed block with line passed over its sheave. This tackle has no mechanical advantage. Gun tackle, named for its use on old sailing ships, of course का नाम कहाँ से आया, and it consists of 1 single sheave fixed block and 1 single sheave movable block. गन टैकल में आपने देख लिया कि 1 सिंगल शीव ब्लॉक फिक्स्ड है और ये ब्लॉक मूव करता है, जैसे आप इस रोप को कॉल इन करेंगे ये ब्लॉक वेट के साथ ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड द मूवेबल ब्लॉक्स। नेक्स्ट लफ टैकल, मेड अप ऑफ 1 डबल शीव 1 सिंगल शीव, 2 फोल्ड 2 डबल शीव ब्लॉक्स। तो सिमिलरली आपको जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वी विल गेट यूज टू इट, एंड ये आपको नाम भी याद हो जाएंगे एंड पता भी लग जाएगा कि यार इन टैकल्स का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूजिंग अ बिगर टैकल, मोर नंबर ऑफ शीव्स, उससे हमें एडवांटेज कैसे मिलती है। सो अगर आप देखिए अब देयर इज समथिंग कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज इन सिंपल लैंग्वेज ऑफ एनी मशीन refers to the relationship between load being lifted and the power required to lift it. So mechanical advantage is a ratio of W is the weight load divided by applied force. Now suppose if I have to lift a load of 5 ton and I have to apply a force of 5 ton also. तो मेरी मैकेनिकल मैनुअल मशीन, हाँ जी, सिर्फ उन मशीन्स के लिए जिसमें मैनुअल पावर लगता है। yeah, manual power means, yeah, this is again, see machine can be anything, a wheel is also a machine, isn't it? मशीन का मतलब ये नहीं कि जिसमें तो आपने पावर दे दी, इलेक्ट्रिक पावर दे दी, उसी को मशीन कहते हैं। सो मशीन कैन बी एनीथिंग। सो मशीन, हाँ मशीन इज की ठीक है, चाहे हम इसमें मैनुअल पावर लगाएं या जो इसका अभी आप जो क्रेन है, क्रेन में आप क्या करते हैं, क्रेन के हेड पे भी आपके यही ब्लॉक लगे होते हैं और उसकी जो वायर है वो आप मैनुअल पुल करने की बजाय इलेक्ट्रिक मोटर पे डाल देते हो या हाइड्रोलिक मोटर पे डाल देते हो वायर को, इज़न्ट इट? जैसे आपने अभी मूरिंग वायर का कहा था, मूरिंग रोप का कहा था। So instead of manually pulling, you are pulling with the machine, with the winch or with the motor. अब उस मोटर को जो है, जब आपने क्रेन है, क्रेन की आपने 20 टन उठाना है, अगर आप 20 टन का लोड एक सिंगल वायर से आपने उठाना है, यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट हो वायर का साइज कितना होगा। एंड उसी वायर में, उसी वायर को मैं ये 2 या 3 जैसे गन टैकल या लफ टैकल या 2 फोल्ड परचेज लगा देता हूँ, तो उसका साइज जो है बिल्कुल आधे से भी आधा हो जाएगा। 20 mm की वायर कैन ईजीली लिफ्ट मे बी 15-16 टन उठा लेगी। सो दैट वी विल सी, दिस इज व्हाट द एडवांटेज वी गेट। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड अपॉन अप्लाइड फोर्स। अगर मेरे को 5 टन का लोड उठाना है और 5 टन ही मेरे को फोर्स लगानी है, देन मैकेनिकल एडवांटेज इज 1। बट इफ आई हैव टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 10 टन एंड आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 2 टन, फिर मेरे को मैकेनिकल एडवांटेज कितनी, 5। So mechanical advantage is nothing, it is just a ratio of weight to be lifted divided by the power or the applied force. So उससे कि आपकी मशीन को कितने टन की फोर्स लगानी पड़ती है उस वेट को उठाने के लिए, उसकी रेशो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। सो हर मशीन की होती है कि कितनी एडवांटेज मिल रही है, इस ब्लॉक में कितनी एडवांटेज मिल रही है, कितना वो होता है। सो इन अदर वर्ड्स, अ लोड ऑफ 10 टन रिक्वायर्स 10 टन टू लिफ्ट, मैकेनिकल एडवांटेज 1। Load of 50 ton requires only 10 ton power,
टू लिफ्ट मैकेनिकल एडवांटेज इज 5। तो यही आपने देखा आज आपकी गैंट्रीज हैं, क्रेन्स हैं। गैंट्री क्रेन जो आपके कंटेनर्स उठाती हैं 20 टन 40 टन का कंटेनर जो है वो आपके, दिस इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ वायर्स। ये तो 50 टन की जो मोटर है जो लगानी पड़े, इट विल बी अ वेरी ह्यूज मोटर विच कैन लिफ्ट 40 टन कंटेनर, बट उसी को मैं वायर्स एंड रोप के परचेज और टैकल के सिस्टम से उसकी पावर को 10 टन की पावर के साथ आई कैन लिफ्ट 50 टन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द मैकेनिकल एडवांटेज। अब आपने देखा है कि ये जो ब्लॉक्स हैं, जब हमने इसको कॉम्बिनेशन बना दिया, व्हेन वी जॉइन दिस ब्लॉक्स विद द वायर और विद द रोप, तो हमें थोड़ी सी मैकेनिकल एडवांटेज मिलने लगी कि कम वेट से, कम एफर्ट से आई कैन लिफ्ट मोर वेट। अब इनकी भी दो चीज़ें हैं कि एक तो है कि आप कैसे इसको लगाते हो। तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि वेदर द टैकल इज यूज टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके अकॉर्डिंगली भी उसकी मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ी वेरी करती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्लॉक यूज टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ये आपने आपके सामने ये सर ब्लॉक ये पता चल जाती है कि जैसे टेंटल्स हमें लगाना है, ये कैसे पता है? ये तो हम अपने उससे ही लगाएंगे ना सर। तो ये आपको देखना है ना कि सर आपको तो हम पे है ना, हम कैसे उसको लगा रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना वेट उठा रहे हो। इस वेट को उठाने के लिए ये रोप जो है उतना वेट बियर कर सकेगी कि नहीं, इस लोड पे कितना एफर्ट आएगा बेसिकली। अगर सपोज मैंने ये वेट उठाना है, चाहे गैंगवे उठाना है, चाहे कंटेनर उठाना है, तो इसका वेट आपको पता है मैंने कितना उठाना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यही कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे को 10 टन का वेट उठाना है एंड मेरी क्रेन में ये जो ब्लॉक लगा हुआ है, ये जो परचेज लगा है, इसके साथ मैं कौन से साइज़ की वायर लगाऊं ताकि मैं इसको सेफली इस लोड को उठा सकूं। तो वही कैलकुलेशन है ये जो न्यूमेरिकल्स हैं कि हाउ मच एफर्ट, हाउ मच वेट और अप्लाई, हाउ मच फोर्स आई हैव टू अप्लाई। जब मेरे पास फोर्स आ गई कि हाँ यार 5 टन की फोर्स लगानी है टू लिफ्ट 20 टन, आई कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ वायर ऑल्सो। यस और नो, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्रेन में वायर भी उतनी लगा देंगे। ठीक है, सो स्लोली वी विल कम टू दैट। सो अब हमने था कि एक तो अब देखा कि यार एक तो व्हाट इज दिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। शुरू में हमने देखा था कि व्हेन द ब्लॉक इज यूज्ड, अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी दो चीज़ें होती हैं, रो टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है कि अगर तो जैसे ये फर्स्ट वाली फिगर देखिए कि मेरा जो वेट है, अब अगर मैं इस पार्ट पे खींच, दिस इज कॉल्ड द हॉलिंग पार्ट, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो मेरा ये वेट ऊपर जाएगा। सो वेट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इफ द फोर्स अप्लाइड एंड द वेट की जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, देन वी कॉल द परचेज इज सेट टू बी यूज टू डिसएडवांटेज। अब ये सिस्टम देख लीजिए, इसमें हमने रोप का सिस्टम ऐसा किया कि आई एम पुलिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे खींचेंगे? तो सेम लाइक दिस, ये मैंने एक ब्लॉक लगाया था, एक तो सिस्टम ये था इसका कि आई एम पुलिंग इट डाउन एंड वेट इज कमिंग अप। अब यहाँ पे भी है कि आई हैव टू पुल इट अप, सो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और दूसरा ब्लॉक लगा देता हूँ उसके थ्रू डाल के, अगेन आई एम पुलिंग इट डाउन, बट ये जो वेट है ये वेट ऊपर जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, वेट भी ऊपर जा रहा है और ये जो पार्ट है इसका, इस परचेज का पहले वाले का, ये पार्ट भी हॉलिंग पार्ट इज ऑल्सो applied force is also in the upward direction and weight is also moving in the upward direction, then the purchase is said to be used to advantage, opposite तो disadvantage। तो ये चीज आपको याद ये वेट पे डिपेंड, वेट उठा रहे हैं। तो ये है कि आपने कैसे उसको उठाना है, इसकी किस में ज़्यादा फायदा है, कैसे सिस्टम है, क्या कर सकता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाना है, यहाँ पे मैंने एक ही ब्लॉक को हुक में लगाया, नीचे वेट लगाया, आई एम पुलिंग इट डाउन। सो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं द परचेज इज सेट टू बी यूज टू डिसएडवांटेज। एंड इन दिस केस इफ द वेट एंड द हॉलिंग पार्ट, ये वाला नहीं, इसका इस परचेज का हॉलिंग पार्ट भी ऊपर मूव कर रहा है, वेट भी ऊपर सेम डायरेक्शन में है, देन द परचेज इज सेट टू बी यूज टू एडवांटेज। ओके, सो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज कि यार परचेज होता क्या है, टैकल होता क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड रोप्स।
तो रोप का मतलब ये नहीं, वायर भी डाल सकते हैं, सो रोप, वायर को भी रोप ही कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन सर डिसएडवांटेज एक बार फिर से बता दीजिए। या डिसएडवांटेज मीन्स कि जैसे आपने ये लगाया, मैंने एक ब्लॉक लगाया, एक फिक्स ब्लॉक ये कर दिया, एक मूविंग ब्लॉक था, इस पे मैंने वेट लगाया नीचे, ठीक है। नाउ व्हेन आई पुल ऑन दिस, आई विल गो ऑन द बोर्ड। आई थिंक बोर्ड पे मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकूंगा। I just punch here and go on the board. ठीक है, I hope all of you can see the board. यस सर। या तो बेसिकली अब मेरा ये जो ब्लॉक है, मैंने ये लगाया, ये मेरी डेक है, तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ। तो नॉर्मली 2 डायमेंशनल में दिखाने के लिए हम ब्लॉक को ऐसा दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर एक शीव है, दिस इज अ फिक्स्ड ब्लॉक, एंड देयर इज अनदर ब्लॉक जिसके अंदर भी एक शीव है, isn't it? अब यहाँ पे मैंने वेट लगा दिया जिसको मैंने उठाना है, दिस इज द वेट टू बी लिफ्टेड। नाउ इफ आई अप्लाई, मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन आई एम अप्लाइंग द फोर्स, और ये रोप मैंने इस पे रिग की है, इट इज कमिंग लाइक दिस थ्रू दिस शीव, एंड यहाँ वापस जो इसका विकेट होता है उसके साथ मैंने ये रोप डाल दी। अब क्या हो रहा है कि जो वेट है, वेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, force being applied is in this direction. So this is where you are applying the effort or force, and this is the weight being lifted. If they are in opposite direction, isn't it? ये तो ऊपर जा रहा है, effort you are applying in this direction. So this is called, the purchase is said to be used to disadvantage. Terminology है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दूसरी तरह में यूज कर सकता हूँ। हाउ? अब यही मेरा ब्लॉक है, इसी को मैं रहने देता हूँ। नाउ आई यूज इट इन अ डिफरेंट वे। ये तो है नहीं कि एक ही तरीका, ठीक है जी, आपने 2 ब्लॉक थे आपके पास, आपने 2 सिंगल शीट ब्लॉक यूज किए, अब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, एंड अब इसकी जो रिगिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि मैंने क्या किया, यहाँ से वायर आई, और अब ये यहाँ जो इसकी विकेट थी नीचे वाले की, इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, पहले इसके साथ था। सो वी कैन यूज दिस वे ऑल्सो। Isn't it? So ये आपका ब्लॉक है, दिस इज वन ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड मूवेबल ब्लॉक, ये फिक्स ब्लॉक है। अब भी वेट जो है, वेट भी ऊपर जा रहा है एंड फोर्स भी मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। सो इसे हम कहते हैं द ब्लॉक इज यूज्ड टू, और द परचेज इज सेड टू बी यूज्ड टू एडवांटेज इफ द वेट एंड द एफर्ट बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। करेक्ट? अंडरस्टूड? क्योंकि देखो भाई, मेरा खास दोस्त की दुकान है, सारा सामान तुम्हारा वहीं से ही आता है सीलमपुर से, तो रेट हमें भी पता है, ठीक है। हम नहीं बोले कितना कमाए कितना नहीं, रेट से लगा दो, क्योंकि ये टैंक रोड जो सारा सामान है तुम्हारे सीलमपुर की साइड से ही आता है, सारे आपके एरिया में से आता है। भाई टैंक रोड वाला क्या बात है बिजनेस कर लो भाई, क्या यहीं पे सामान भाई। ले रहे हो? लगाने के बाद में वसीले बिजनेसमैन बिजनेस यहीं कर लो भाई। लगा देते हैं इसको। ये सूरत का आइटम है, ये सूरत का ये कौन है भाई? 2980 लड़ाई मोहन, माइक बंद कर ले यार। आनंद मोहन, पापा से बात कर लेना, देता हूँ। हेलो, अब देख लो भाई, देखो आपको जहाँ से अच्छा लगा वहाँ से ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं। आनंद मोहन, मिस्टर जहा, कैन यू हियर मी? Anand Mohan, can you switch on your camera, please? Anand, can you switch on your camera, please? I am asking Mr. Anand Mohan, can you switch on your camera, please?
सर सर वो क्लास में नहीं है सर। लीव कर दिया सर। Okay, he is absent, is it? But I could see him here. He had logged in. सर पता नहीं, मैंने तो अभी देखा है, नाम नहीं दिखा। अच्छा अच्छा, I could see him on the screen here. बाबू, ये आप +2 में तो हो नहीं या 10th में स्कूल में तो हो नहीं, just for all of you. Okay, and it is for your benefit कि ये जो चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट सो ईजी। अगर आपको आता है सब कुछ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। ओके, बट आज मैं इस टॉपिक को अगर ख़त्म करता हूँ और कल आनंद मोहन जी मेरे पास आते हैं कि सारी एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, डियर यू नो यू आर सेल्ड ऑन द शिप, इजंट इट, कि शिप की लाइफ क्या होती है। डोंट एक्सपेक्ट मी। अगर आपको बिजनेस करना है, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस पढ़ाई के टाइम में, यू आर मोस्ट वेलकम, बट आई सजेस्ट अगेन टू एडवाइज टू ऑल ऑफ यू that do not disturb the class. There are other people who are very keen to study, who have paid money and they have come here to study. So Anand Mohan ji, I will not forget you. आज अगर आप absent हो, कल तो आप आओगे, परसों तो आप आओगे क्लास में ना। So do you think that कि you just go off the air? So we cannot. हेलो सर। सर आनंद सर, सॉरी सर, लैपटॉप में सर दिक्कत हो रही है, अपने आप माइक ऑन ऑफ हो रहा है सर, डिस्कनेक्ट किया था सर कॉल, दोबारा ज्वाइन करने के लिए सर। Can you switch on your camera please? यस सर। Let me have a look at your face. यस सर, सॉरी सर, लास्ट कुछ टाइम से सर कॉल आपकी आवाज़ पूरी सुनाई नहीं दे पा रही थी सर, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट किया है सर। अच्छा सुन ले, मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, आप मेरे बच्चों के बराबर हो। यस सर, सॉरी सर। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग सॉरी, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ सिंपल, कि ये जो आप पढ़ने को जब बैठते हो ना, तो आपको जी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, दरवाज़ा कीजिए बंद, बिकॉज आपका कैरियर आपके हाथ में है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, घर वाले ही बोलेंगे ये काम कर दो, ये कर दो, अरे क्या पढ़ाई छोड़ो, दिस दैट एंड ऑल दैट। योर अदर ब्रदर हु मे बी इन द आर्मी, ही विल बिकम द लेफ्टिनेंट जनरल एंड तुम सेकंड मेट ही रह जाओगे। क्यों? कि तुम घर के काम कर रहे थे, उस वक्त कोई नहीं आपकी मदद करने वाला। यू गॉट टू सर्वाइव योर सेल्फ। वन सेकेंड थिंग, आपको कुछ भी करना है, मोड ये जो नया सिस्टम आया है, इसमें कोई हार्म नहीं है। यस सर। आप कैमरा बंद कीजिए, सो जाइए, मेरी लेक्चर को सुनिए ना सुनिए, बच्चे इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी। यस सर। बट जो दूसरे बच्चे हैं ना, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि वो अगर बिना मेरे को बोले, आई कैन रीड देम कि सर हमने क्या बिगाड़ा है, वाई समबडी इज डिस्टर्बिंग अस, क्या आंसर दूंगा मैं। एंड आप 10th में नहीं हो, स्कूल में नहीं बैठे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, टुमारो यू आर गोइंग टू बी अ थर्ड ऑफिसर ऑफ अ शिप कैरिंग 300,000 tons of crude oil, डिपेंडेंट ऑन यू, 25 लाइफ्स डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप ऐसा ही करोगे कि सर ये ऑन हो गया, वो ऑन हो गया, सर वो देखा नहीं था जहाज, 25 लाइफ्स विल गो डाउन इन द वाटर। डिसाइड, अभी आपका खेल कूद का जमाना है, आपका दिल नहीं भरा, उस तरफ चले जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं आती लिख के, चलो। सॉरी सर, बार सर लैपटॉप में अपने आप माइक ऑन हो रहा था सर। क्लास में है, अगर आपको कुछ भी करना, माइक ऑफ कर दीजिए। आई नो टू रन आफ्टर यू, क्या यार ये पढ़ ले, यू नो योर लाइफ, यू नो व्हाट इज द सिचुएशन आज जॉब की, एग्जाम्स की। चलो बंद कर लीजिए कैमरा। सॉरी सर। या ओके, सो वी वर हियर, या बंद कर लीजिए आनंद। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि वी कॉल इट ट्रिक टू एडवांटेज। एंड दूसरा हमारा सिस्टम था कि इसी चीज को इफ आई rig it in a other way, जहाँ पे both the, this is again a gun tackle, one single sheep block,
another single sheave block, and यहाँ पे I am applying the force in this direction. This is the weight I am going to lift, and this weight is moving in this direction. Effort is, or the force applied is moving in this opposite directions, isn't it? So वहाँ पे अगर आप देखिए तो इसकी रिगिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है. So this is called disadvantage and this is called advantage. Okay, so इसको समझ लेना. These things will be used in the next contest. तो अब हमने, I hope clear to everyone what is advantage, what is disadvantage. Yes, sir. यस सर. चलो okay. उसमें सर हाँ जी. सर चाहे जितनी मर्जी शीव्स हों पर अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा एफर्ट और वेट लिफ्टेड Yes. तो वो डिसएडवांटेज होगा. Yes. Again I'll show you. तो आपका डाउट है इस अच्छा है ना. देखिए ऐसे बोलोगे आपके. चलो मैंने तो ये सिंगल शीव लगाया. अब मैं आपको okay I am using a block which has got say double two-fold purchase. Two-fold purchase में क्या है कि यहाँ पे भी there are two sheaves in this block and there is another block I am using जिसके अंदर भी there are two sheaves and this is the weight I am going to lift. ये आपकी हुक है. Normally you have this bicket जिसके अंदर मैं इस रिंग लगाता हूँ and I am picking this weight in this direction, and now if I am applying the force in this direction, what we call effort is applied in this direction. You are hauling it in this direction by a winch or by hand or whatever means you are using to haul up on this. So इसकी जो वायर, जो रोप या वायर्स है वो कैसे हम rig करेंगे? तो basically it will go so it will look like this. ये मैंने यहाँ पे इसको शैकल के साथ फिक्स कर दिया. इसकी हुक थी. दिस इज one block with two sheaves. This is another block with two sheaves. This is called two-fold purchase, and ये आपका deck है जहाँ पे normally the fixed point is shown like this. So this is the effort applied. This is the weight being lifted. So अब हम slowly we will see कि हाँ यार ये weight अगर उठाना है, मैंने 10 टन का weight उठाना है तो यहाँ पे मेरे को कितना effort लगाना पड़ेगा. अगर मेरे को सिंगल वायर से उठाना पड़ता तो 10 टन को उठाने के लिए 10 टन का एफर्ट लगाना पड़ता. बट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे यू विल कम टू नो 10 टन को उठाने के लिए हो सकता है मेरे को 2 या 3 टन का फोर्स या एफर्ट ही लगाना पड़े. ओके, सो दिस इज अगेन योर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ये वाला एग्जांपल तो एडवांटेज था ना हमारे लिए. हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलिए सुमित. सर ये वाला एग्जांपल तो एडवांटेज लेता ना. या ये वाला डिसएडवांटेज था. अपोजिट, इफ बोथ आर मूविंग, ये एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, वेट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज डिसएडवांटेज. If both the force applied and the weight both are moving in same direction, then it is called advantage. Okay? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं. Yeah. So इसके साथ अभी हमारा सबसे पहला स्टेप आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज. दैट वी हैव सीन इज द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड बाय द एफर्ट अप्लाइड. अब सेकंड स्टेप जो है, सेकंड थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो. नाउ व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? और इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं वी आर. नाउ वेलोसिटी रेशियो इज, अगर आपने देखा हो, इफ आई एम लिफ्टिंग दिस वेट by say this gun tackle, now to lift this weight, ये मेरा weight है. now इस weight को अगर मेरे को 1 मीटर उठाना है, ये जो वेट है इसको मेरे को 1 मीटर डिस्टेंस उठाना है, तो ये वाली जो रोप है मेरे को इसको कितने मीटर खींचना पड़ेगा? ये रोप को कितने मीटर खींचूंगा ताकि ये 1 मीटर उठे? हाँ जी, 1 ही मीटर. तो 1 मीटर अगर आप, सर एक बार दोबारा बताना, ये रोप कितनी खींचते? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन. okay. I am using this gun tackle to lift this weight
अगर मेरे को इस वेट को 1 मीटर का डिस्टेंस मूव करना है, इफ दिस वेट आई वांट टू मूव बाय 1 मीटर, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ दिस रोप, ये जो हॉलिंग पार्ट है इसको मेरे को कितना मीटर खींचना पड़ेगा ताकि ये वेट 1 मीटर ऊपर उठे? हाफ ए मीटर सर। ओके, आप कहते हो हाफ अ मीटर। अगर मैं इस रोप को हाफ अ मीटर खींचता हूँ तब क्या होगा? अब अगर आप ये देखिए, ये जो वेट है इस पे ये रोप जा रही है और फिर ये रोप ऐसे जाके बेसिकली दिस वेट इज बीइंग सस्पेंडेड और द वेट इज टेकन बाय दीज टू रोप्स, इजंट इट? अगर आप यहाँ तक देखिए तो ये पूरा वेट जो है ये 2 रोप इसको शेयर कर रही है, इजंट इट? अगर यहीं तक देखिए इसको, ये जो वेट है, समझ नहीं आया सर, एक बार वापस रिपीट कर दो। अच्छा, ये वेट को अगर मेरे को 1 मीटर मूव करना है, इफ आई हैव टू मूव दिस वेट बाय 1 मीटर डिस्टेंस, अब मैंने यहाँ था इसको मेरे को 1 मीटर जमीन से ऊपर उठाना है, तो ये हॉलिंग पार्ट, ये रोप को कितने मीटर मेरे को खींचना पड़ेगा? जस्ट इमेजिन मैनुअली। डबल रहेगा। आधा मीटर सर। हाँ जी, 1 मीटर उठाना है तो सर 2 आधा मीटर खींचना पड़ेगा। हाँ, 1 मीटर उठाना है। अभी आप सिंपल लेते, चलो और सिंपल करता हूँ मैं। 4 पिक स्टोर से मेरे को ये स्टील कॉयल और वायर कॉयल उठाना था। मेरे पास ये डेविड लगा हुआ है, ये मेरी डेक है, यहाँ पे एक डेविड लगाया मैंने और इस डेविड पे मैं एक शीप टांग देता हूँ। ये आपका बूबी हैच है, यहाँ से आपने ये नीचे आपका 4 पिक स्टोर में ये कॉयल है स्टील का, यहाँ पे एक डेविड लगा है, इसके ऊपर मैं ये एक शीप लगाता हूँ एंड मैं यहाँ से ये रोप डालता हूँ एंड देन आई स्टार्ट पुलिंग दिस रोप। चलो इस तरफ ले लेते हैं कि आप बोलोगे सर डेविड के नीचे कैसे आ गया मैं। यहाँ पे आप खड़े हो और आप इस रोप को पुल कर रहे हो टू पिक दिस वेट अप, ये आपके डेविड है। अब अगर मेरे को इसको 1 मीटर उठाना है, ये जो आपका वेट है डेक से 1 मीटर उठाना है, तो मेरे को इस रोप को 1 ही मीटर खींचना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। 1 मीटर खींचूंगा तो ये 1 मीटर ऊपर आएगी, 2 मीटर खींचूंगा तो 2 मीटर ऊपर आएगी। अब मैंने इस सिस्टम को बदल के, हाँ जी, अब मैंने इस सिस्टम को बदल के यहाँ पे, यार मेरे को तो बहुत वेट लगाना पड़ रहा है, ये भारी है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ कि ठीक है, अब मैंने यही आपका डेविड था, अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक और ये एक फ्लोटिंग ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया और इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अब जब मैं इसको हीव अप कर रहा हूँ तो आई एम हीविंग इट अप लाइक दिस। नाउ कैन यू टेल मी, अगर मेरे को इसको 1 मीटर उठाना है तो इस रोप को कितने मीटर खींचना पड़ेगा? 2 मीटर सर 2 मीटर। हाफ मीटर। हाफ मीटर सर। हाफ मीटर। अगर बच्चे इसको हाफ मीटर करता हूँ, 2 मीटर सर। सिंपल 2 मीटर। यस सर, यस सर, 2 मीटर। 1 मीटर ये वाली रोप ऊपर उठेगी, 1 मीटर ये वाली रोप ऊपर उठेगी, तब ये जाके 1 मीटर ये उठेगा, इजंट इट? तो 1 मीटर 1 मीटर ये रोप कंटिन्यूस जा रही है यहाँ से, तो इसको मैं अगर 2 मीटर उठाऊंगा तो 1 मीटर ये उठेगी, 1 मीटर ये उठेगी और 1 मीटर ये उठेगी, तो आपका वेट 1 मीटर उठेगा। हॉलिंग पार्ट को 2 मीटर खींचना पड़ेगा। यस सर। क्लियर? हाफ अ मीटर वाला क्लियर? यस सर, क्लियर सर। यस सर। और सिंपल लेना है यार, ये मेरा वेट है, नाउ दिस वेट इज अगेन, इसको मैं, ये लो आपने एक रोप लगाई, अब मैंने इसको किसी भी वेट को, ये जो वेट है इट इज सस्पेंडेड बाय दिस 2 रोप्स, चाहे आपने ये पकड़ी है, एक बंदे ने ये पकड़ा है, अब ये जो वेट है सपोज 100 किलो है, इस रोप्स के ऊपर कितना वेट आएगा? अगेन सिंप्लीफाई, पहले मैं डिवाइड हो जाएगा 2 में, क्या जितने नंबर ऑफ सिंगल रोप पे उठाता हूँ, सिंगल रोप पे 100 किलो आएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूँ
तो 50 किलो सिंगल रो पे जाएगा सर 50-50 सिंपल, वेरी गुड। देखा, अब आप एब्सोल्युटली बेसिक पे आ गए कि अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो ये दोनों रोप जो है इसका वेट शेयर कर रही हैं, 50 किलो इस पे 50 किलो इस पे। अभी इन्हीं रोप्स को मैं 4 रोप में बना देता हूं, वेट और कम हो जाएगा। करना क्या है, मेरे को ये ब्लॉक ही चेंज करना है, इसमें डबल शीव वाला करता हूँ, 4 रोप बना दी, वेट और कम हो गया। दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इन दिस परचेजेस, दैट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोप्स। बट उसमें क्या होगा, अगर मैं ये जो शीव्स हैं इनको इंक्रीज करता हूँ तो मेरे को इसको ज्यादा खींचना पड़ेगा। अब तो 2 थे तो इसको 2 मीटर खींचना पड़ा, अगर ये 3 हो गई 4 हो गई तो ये इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। इसको 4 मीटर खींचूंगा तब ये 1 मीटर ऊपर आएगा। यहाँ पे 8 रोप हो गई तो इसको 8 मीटर खींचेंगे तब ये 1 मीटर आएगा, बट एफर्ट कम होता जाएगा। आई होप इफ दिस मच इज क्लियर। नाउ वी कम टू इसी डिस्टेंस को, इसी चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। नाउ वेलोसिटी रेशियो मींस with what rate the weight is coming up and with what rate the effort is being applied. Simple, rate क्या होता है, velocity. Velocity क्या है, distance divided by time, isn't it? So velocity ratio is the how much what is the velocity of effort and velocity of weight. अब वेलोसिटी क्या है, टाइम फैक्टर्स में कॉमन है, हम इस टाइम को निकाल देते हैं। बेसिकली द डिस्टेंस एफर्ट मूव्स, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस द एफर्ट मूव्स टू द डिस्टेंस योर वेट मूव्स इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो, VR। ये भी हमारे को एक्चुअली यूज होगी जब हम इसमें कि हॉलिंग पार्ट पे कितना एफर्ट लगाना है, कितने टन की फोर्स निकालनी है वहां पे। नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि हाँ यार वेलोसिटी रेशियो इज सिंपल, द डिस्टेंस द एफर्ट मूव्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस द वेट मूव्स। अब वहां मैंने देख लिया था कि यार एफर्ट हैज टू मूव बाय 2 मीटर, वेट मूव्स बाय 1 मीटर, सो वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई, 2। यस और नो, कि 2 मीटर मेरे को इसको खींचना पड़ा तो 1 मीटर उठा, तो इसी रेशो को बनाता हूं तो वेलोसिटी रेशियो 2। अब इसी चीज को यार इतनी कैलकुलेशन करने को ले कि आप भी कहोगे सर सिंपल मेथड है कि हमने जब ये उठाया, जब यहाँ पे अब कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि या तो यार मैं नंबर ऑफ ये जो रोप्स हैं इनको काउंट करूं कि यार 1 2 तो ये वेलोसिटी रेशियो 2 है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये 1 2 या 3 लेंगे या 2 लेंगे। हम जाते हैं नंबर ऑफ शीव्स। नंबर ऑफ शीव्स इस परचेज में कितने हैं, 2, वेलोसिटी रेशियो भी 2। सो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड, हाउ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो, इक्वल टू n। n मींस नंबर ऑफ शीव्स। इफ द परचेज इज यूज्ड टू disadvantage, if the purchase is used to disadvantage like this, then the velocity ratio is equal to n, number of sheaves। ये देखो हमने देख लिया यार, हमने ऐसे यूज किया वेलोसिटी रेशियो, जितने इसमें शीव्स थे, एक शीव ये था एक ये था, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गई। इफ सर नीचे वाले ब्लॉक में 2 शीट्स हैं, या ये देखो एक शीव ये है एक शीव ये है, टोटल ये टोटल सिस्टम बन गया ना। इस टोटल मशीन में कितने शीव है, 2, तो वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी, 2। तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया कि वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वी विल से वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू n इफ द परचेज इज यूज्ड टू डिसएडवांटेज, इफ परचेज टू डिसएडवांटेज, and n plus 1 if purchase is used to advantage। अगर एडवांटेज पे यूज होता है तो हमारी वेलोसिटी रेशियो जो है वो n plus 1 हो जाएगी। तो अगर 2 है तो उसको हम 3 बना देंगे, अदरवाइज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ शीव्स। तो ये काउंट करना भी मुश्किल नहीं है, जो भी मैं परचेज यूज कर रहा हूँ, सिंगल
डबल गन टैकल यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट टैकल यूज कर रहा हूँ, 2 फोल्ड परचेज यूज कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने 2 फोल्ड किया था उसमें नंबर ऑफ शीव्स थे 4, एंड इफ द परचेज इज यूज्ड टू डिसएडवांटेज मींस इन दिस पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी रेशियो स्ट्रेट वे, एंड इफ इट इज यूज्ड टू एडवांटेज तो वेलोसिटी रेशियो बढ़ जाती है n+1। सर हर ब्लॉक का अपना एक शीव होगा सर? नो, हर ब्लॉक में डिपेंड करता है, सिंगल शीव में एक होगा, ट्विन शीव में 2 सर होंगे। ये बोर्ड पे इसके जो ऊपर वाला है उसमें सिंगल शीव है और नीचे वाले में डबल शीव है। डबल कहाँ दिख रहा है आपको? डबल दिख रहा है, ये रो पे जा रही है इस शीव के बीच में से। डबल ऐसे बनता है, ये आपकी डेक, इसको मैं अगर मेरे को डबल शीव बनाना है देन आई विल शो दिस ब्लॉक एज 1 शीव एंड 1 शीव, दिस इज कॉल्ड डबल शीव ब्लॉक। इसको 2 डायमेंशनली दिखाने के लिए बेसिकली दिस इज अ इजी वे टू शो। दिस इज अ wooden block having 2 sheaves, this is also one block having 2 sheaves, जो मैंने आपको वहां पिक्चर दिखाई थी उसी को मैं बेसिकली 2 डायमेंशनली ऐसे शो कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम वेट उठाते हैं। नाउ इफ यू से द 2 फोल्ड परचेज इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 10 टन, ये मेरा वेट है 10 टन, दिख रहा है आपको नीचे या बाहर तो नहीं चला गया? नहीं से दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। Yeah, if 2-fold purchase is used, then I will use it like this कि 2-fold purchase is used to lift a weight, तब मेरा जो sketch है very simple बनेगा कि 2-fold purchase, I know 2-fold purchase में there are 2 blocks with 2 sheaves, एक ब्लॉक ये आ गया, दूसरा ब्लॉक आपका ये आ जाएगा, इसमें भी there are basically 2 sheaves and ये आपका weight attached है यहाँ by the hook। अब मैंने इसको if it is used to disadvantage means weight is coming up and I am hauling it, I am pulling the rope in this direction। ये बेसिकली रोप जो है इस शीव के बीच में से होके जाती है, ये यहाँ से जाएगी। अब इन दिस केस अगर मेरे को वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करनी है, now I have to see the purchase is used to advantage or disadvantage, this is used to disadvantage। velocity ratio straight with number of sheaves 1 2 3 4, and similarly अगर इसके पार्ट्स तो काउंट कर सकते हैं, वो भी तो वही हुआ वेलोसिटी रेशियो। यस, आप ये भी कर सकते हो, whatever is convenient to you, बट यहाँ पे एरर मेक चांसेस ऑफ मेकिंग एरर आर देयर, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आप इसको भी काउंट कर सकते हो, या इसको काउंट करूँ ना करूँ डाउट है। सर एक एडवांटेज का भी दे दो सर। एडवांटेज वाले में भी वही चीज है कि एडवांटेज वाले में क्या हो रहा है, दिस इज माय 1 ब्लॉक, 2 sheaves, another block, 2 sheaves, and this is the weight I am going to lift. Now I want to use this purchase to advantage, so that means I have to pull this rope in this direction। Isn't it? अब जो इसकी वेलोसिटी रेशियो है it will change to n+1। तो सर आंसर 5 हो गया इसका? हाँ जी, आंसर क्या 5 हो गया सर? या यहाँ पे VR जो है VR will be 5 because purchase is used to advantage। ठीक, चलो ठीक है सर इस ब्लॉक में वायर का स्ट्रेंथ सर 20 है, तो उससे ज्यादा तो उठा सकते हैं सर? समझा नहीं बच्चे, दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सर ये इस रोप में इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेफ वर्किंग लोड सर 20 टन है। ओके, और सर ये 2 शीव है, तो इससे ज्यादा तो उठा सकते हैं ना सर, क्योंकि वेट डिवाइड हो रहा है ना। नो 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 नो, अगर आप ज्यादा उठाओगे तो ये रोप टूट जाएगी। ये टूट, यस सर।
हो सकता है इसी। अब जब आप कहते हो कि मेरा ये सिस्टम है, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूं, तो इसको मिटाते हैं। ये आपकी डेक, ये आपका मास्ट और ये आपकी क्रेन। अब ये क्रेन में आपकी जो ये आपने ब्लॉक लगाया, सपोज पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने सिंगल शीट ब्लॉक लगाया और यहाँ से वायर आ रही है, नॉर्मली डायरेक्ट्स में होता था, एक ब्लॉक यहाँ पे लगा और यहाँ से ये वायर जो है विंच पे जा रही है। तो दिस इज द विंच ऑन डेक एंड ये वायर आपकी विंच पे है। अब ये जो ब्लॉक से वायर अगर आप सिंगल वायर लेके जाते हो, अब आप इससे अगर अपना कार्गो उठाते हो, यहाँ पे मैं अपना कार्गो लगाऊंगा, यस सर, इधर। अब इस कार्गो को उठाने के लिए सपोज ये 5 टन का कार्गो है, तो आपको ये 5 टन का इसके ऊपर एफर्ट कितना लगेगा? एक तो 5 टन तो इसका वेट है। अभी कल हमने पढ़ा था, अच्छा आपने नहीं किया, कि अगर ये बॉडी जो है इसका वेट 5 टन है, इसको इसी पोजीशन में रखने के लिए आई हैव टू अप्लाई अ 5 टन फोर्स जस्ट टू मेंटेन। अगर मैं इसको नहीं करता तो बॉडी गिर जाएगी, इट विल कम डाउन ग्रेविटी से, इजंट इट? यस सर, gravity will pull this body down, so the weight is acting down below vertically, mg it is acting, but to maintain the body here I have to apply a force which is equal and opposite direction। equal मतलब 5 टन की फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉडी यहीं रहेगी, ये कार्गो गिरेगा नहीं, बट इसको उठाने के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू लिफ्ट। तो नेचुरली मेरे को एफर्ट जो है थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रास्ते में एक शीव लगा दिया, पुली लगा दी। अब जब पुली लगाई तो उसके अंदर भी फ्रिक्शन आ जाएगा, यस सर, इजंट इट? सो नेचुरली इस 5 टन को उठाने के लिए आपकी ये जो वायर है इसके ऊपर 5 टन का लोड प्लस सम रेजिस्टेंस, प्लस यहाँ पे भी आपने इसको लगा दिया विंच पे ले जाने के लिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये सारी रेजिस्टेंस ऐड होते होते हो सकता है आपको मे बी 6 टन का एफर्ट लगाना पड़े 5 टन को उठाने के लिए। यस सर। अब इसी चीज को हम, ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस, बिकॉज ये जो शीव्स हैं ये मेरे को कोई एडवांटेज नहीं दे रहे, दे आर जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन। यस सर, थैंक यू सर। बट इन एडिशन दे आर एडिंग द फ्रिक्शन। ऐसा तो कोई शीव है नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना हो, कोई ऐसी तो चीज चलेगी। तो अब हम इसको करते हैं कि नहीं यार ये तो काम गड़बड़ है, 5 टन के वेट के लिए 6 टन का लोड उठाना पड़ता है। तो मैं करता हूँ इस वायर को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो आपका शैकल है क्रेन हेड पे, इस शैकल के साथ मैं यहाँ पे एक ट्विन शीव ब्लॉक लगा देता हूँ। ब्लॉक है उसके अंदर 2 शीव हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एक मैं फ्लोटिंग ब्लॉक लगाता हूँ जिसके अंदर भी 2 शीव हैं। अब इसकी हुक के साथ आप अपना कार्गो लगा दीजिए। अब ये जो वायर बनेगी, आपकी जो वायर है वो ऐसे ऐसे घूम के जाएगी। क्रेन्स में आपने देखा होगा, अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द क्रेन्स। अब मैंने ये सिस्टम लगा दिया। अब अगर आप देखिए कि ये जो 5 टन का वेट है, दिस इज सपोर्टेड बाय 1 2 3 4 वायर्स। एक सिंपल, जस्ट वेरी बेसिक सिंपल के लिए कि नेचुरली ये जो 5 टन का वेट है वैसे तो चार वायर्स में डिवाइड हो रहा है, तो वो मैं से 4 टन कर देता हूँ। चलो 4 टन का उठाना है तो हर वायर के ऊपर 1 टन का लोड आ रहा है, दैट मीन इसके ऊपर 1 टन का ही वेट आएगा, 1 टन का ही एफर्ट लगेगा। यस सर, इजंट इट? प्लस चलो फ्रिक्शन, हम नंबर ऑफ शीव ज्यादा कर दिए हैं, तो ये जो 4 शीव्स हैं हो सकता है एक शीव 10% जो है मेरे को करे, तो उसको मैं एड अप कर देता हूँ। 4 टन का 10% कितना हो गया? 0.4 टन। तो मेरे को यहाँ पे 1 टन का एफर्ट लगाना था इसको उठाने के लिए, बिकॉज ये 4 वायर्स हैं, प्लस मैं इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूँ। 4 शीव्स हैं, 4 × 10% ऑफ द वेट। वेट कितना उठा रहा हूँ? 1 टन, इसका 4%। .4, तो 1.4 टन का एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस तो आ गई, बट इतनी वायर्स, इतना जस्ट चेंजिंग द ब्लॉक, देखिए एफर्ट कितना कम हो गया, 4 टन से सीधा 1.4 पे आ गया।
तो मेरे को छोटी सी पावर, छोटी सी मोटर लगानी पड़ी। दिस इज बेसिकली द एडवांटेज। ठीक है, चलो। हाँ जी सर, ओके। यस सर, थैंक यू सर। दिस आर द वेरी बेसिक्स। अब हम, अगर आपने ये समझ लिए फिर बाकी आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, टेक अ ब्रेक। थैंक यू सर। फिर हम फार्मूला पे जाएंगे। अभी कितना 12:35, तो आज कितने बजे वापस आओगे? 15 मिनट सर। 45 पे सर। चलो ठीक है, 45, वेरी गुड। 10 मिनट में वापस, वेरी गुड।